So we have learned about how to define or declare array, different way of declaring or defining array, and how to insert data into insert element into the array at the beginning or at the end, or remove element from the beginning of the array, or might be at the end of the array, using push, pop, shift and unshift. Clear? When you are removing any element, then definitely that method, removing means shift and pop, that method always return the removed value. Clear? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक अपने कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। ओके, अभी स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या है? स्प्लाइस मेथड क्या है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट और रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है. इफ यू वांट टू रिमूव और इंसर्ट एनी एलिमेंट इन बिटवीन any position of the array, then you can use splice. Clear? So if any requirement comes to you that you have to remove some element from fifth position of the array and insert another 2 or 3 new element, then how can you do that? Using splice. So let's see the example how it works. So original array is hobbies, which contains 2 elements, sports and cooking, right? Then I want to insert. So what is this splice method? What are the parameters it accept? It accept 2 important parameter, 2 required parameter, required parameter. First one is the position on which you want to change or insert the element, remove or insert the element. And second one is the number of element you want to remove in that position. It is position. Second one is number of element that you want to remove. And third and onward, jitna bhi element you want to insert, how many element you want to insert into that position, means this is the position. First one is the position. ये position में कोई new element आपको, if you want to insert the new element, जो भी पोजीशन में आप इंसर्ट करना चाहते हो, then यहाँ पे आप डाल, from third onwards you can add the elements you want to insert into the array. अभी तो ये जो सिंटेक्स है ये क्या करता है ना, एग्जिस्टिंग एरे में, हॉबीज एरे में 0th पोजीशन में कोई भी एलिमेंट मुझे रिमूव नहीं करना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस 0 मींस कोई भी एलिमेंट मुझे रिमूव नहीं करना है, बट ये पोजीशन में मुझे एक सिंगिंग करके एलिमेंट ऐड करना है, राइट? क्लियर? सो आउटपुट देखो यहाँ पर क्या है, पहले एम्प्टी एरे और इसके बाद सिंगिंग, स्पोर्ट्स एंड कुकिंग. सो ओरिजिनल एरे वाज स्पोर्ट्स एंड कुकिंग वाज देयर, बट 0th पोजीशन में क्या होगा, ये 0th पोजीशन में क्या है, स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स की जगह में मैंने क्या है कि सिंगिंग इंसर्ट किया एंड रिमूव कुछ भी नहीं किया. कितना एलिमेंट रिमूव करना है ना, 0 एलिमेंट कोई रिमूव नहीं किया, मतलब बाकी 2 एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिमूव. क्लियर? अब ये हमेशा रिटर्न अगेन क्या करता है, मैंने जैसे पॉप एंड शिफ्ट में बोला था, जब कोई एलिमेंट रिमूव होता है तब ये रिटर्न करता है रिमूव्ड एलिमेंट. अभी मैं यहाँ पे वैल्यू में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी दिखा रहा है, एम्प्टी एरे दिखा रहा है, राइट? क्लियर है नॉट? क्योंकि मैं कोई रिमूव नहीं किया, 0 एलिमेंट रिमूव किया. अब सपोज यहाँ पे 1 करूंगा तो क्या करेगा, 0th पोजीशन में इट विल रिमूव 1 element from 0th position and replace with singing, right? Then what will be the output? The value will contain, the val variable will contain the removed element. So which was the removed element? Sports. Okay, then it will return sports. Then hobbies will be, of course, sorry, it will not return a value, it will return an array, right? And the original array is also altered,
change हो जाएगा original array. Original array will be now singing and cooking because sports had removed. Look, sports, the removed element is here and another is singing and cooking. So what it does, the splice method will remove any elements from any position and replace with new element if you pass over here from third position and onwards. And this splice method alter the original array and create a brand new array with removed element. ये एक एरे रिटर्न करता है जब ये स्प्लाइस एग्जीक्यूट होता है, ये न्यू एरे रिटर्न करता है जो which contain only what, the removed element. Clear? shift एंड पॉप क्या करते हैं, एलिमेंट रिटर्न करते हैं, बट ये एरे रिटर्न करता है. स्प्लाइस ऑफ कोर्स रिटर्न एन एरे बट रिमूव्ड एलिमेंट्स का एरे रिटर्न करता है. क्लियर? और स्प्लाइस और एक क्या करता है कि ओरिजिनल एरे को अल्टर कर देता है, ओरिजिनल एरे चेंज हो जाता है. 3 चीज याद रहा? कोई बता सकता है मैं क्या बोला यहाँ पे? सर स्लाइस ओरिजिनल एरे को Splice. चेंज करता है, स्प्लाइस ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है और रिमूव्ड एलिमेंट एक अलग से वैल्यू में आ जाएगा, उसको याद रखता है, याद नहीं करता, और रिटर्न करता है. रिटर्न करता है, और जो पोजीशन अपन देते हैं उस पोजीशन से हटाता है. जैसे कि ये 0 1 दिया है तो 0 इंडेक्स पे एक एलिमेंट हटा देगा, तो उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट जो आगे लिखा है उसको ऐड कर देगा. यहाँ पे एक ही एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट भी डाल सकते हो. यस सर, पर वो 0 से ऐड करेगा. मतलब 0 वाला 0 पोजीशन से एक एलिमेंट हटा के सिंगिंग और ड्रिंकिंग ऐड कर देगा. दो एलिमेंट ऐड कर देगा. देखो कैसे यस करेगा. सर. तो सिंगिंग एंड ड्रिंकिंग ऐड कर दिया, कुकिंग वहां पे रहा, बट Yes, sir. स्पोर्ट्स को रिमूव कर हटा दिया एंड ये Yes, न्यू sir. एरे क्रिएट किया विद स्पोर्ट्स. यस सर. यहाँ पे सपोज मैंने 2 लिखा, देन क्या होगा? सर position स्पोर्ट्स से- कुकिंग हटा देगा हाँ, और नहीं, सिंगिंग ड्रिंकिंग कर. यहाँ पे 1 किया, आई जस्ट गिविंग द इंडेक्स एज 1 and Yes, sir. 2 elements should be removed from first position, 1 position, and replaced with singing and drinking. Then what happened? 1 position in cooking कुकिंग हटाएगा. position. Then the value should contain create a new array with value cooking because I am removing cooking, right? And in place of cooking I am replace 2 other elements, singing and drinking. So hobbies array will be altered and the element should be sports, singing and drinking, right? Yes. Sports, singing and drinking, and removed element is cooking. यहाँ पे आप 2 एलिमेंट रिमूव करने के लिए बोला, बट व्हाई इट इज रिमूव्ड 1? बिकॉज फ्रॉम 1 पोजीशन देयर इज नो 2 एलिमेंट्स आर अवेलेबल, ओनली 1 एलिमेंट अवेलेबल, राइट? इफ द पोजीशन विल बी 0 then it will return 2 element, means sports and cooking both will be removed from 0 position and singing and drinking will be replaced with will be inserted into it, right? Now the value will be another array which contains the removed elements. क्या है? sports and cooking. Yes or no? Sports and cooking are removed elements, so these are written by the splice method, and new elements like singing and drinking are inserted to hobbies array, right? So hobbies will be now altered to singing and drinking, and it return the removed array of a removed element like sports and cooking. इसमें कोई डाउट है? No, sir. ओके, अब यहाँ पे कुछ और चीज देखेंगे हम. Let me comment this one and uncomment this below 3 instruction. अब यहाँ पे क्या किया मैंने? -2 दिया. Remember, so splice कोई भी मेथड में, एरर मैनिपुलेशन मेथड में जहां पे पोजीशन पास कर रहे होंगे हम, उसको माइनस दे सकते हैं हम. व्हाट डज इट मीन? ये माइनस का मतलब क्या है?
जब माइनस से इंडेक्स चालू होगा, इट मींस इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। लेफ्ट से जब इंडेक्स चालू होता है तब इंडेक्स क्या होता है, 0 जीरो 1 से 3, राइट। बट राइट से होता है तो -1 -2 -3 इस तरीके से होता है, राइट। But the second parameter is not a position, it is a count. So count cannot be a negative. It might be 0 or positive number, right? Count cannot be negative number, always 0 or positive number. But position might be what? Negative. Then if position start from negative means minus लिखा हुआ है, मतलब it will start from right. तो -1 cooking is a -1 position, -2 position is sports. So what does this statement means? Means from -2 position, means -2 position is sports, right? I want to remove two element, means both of the element will be removed, means sports and cooking both will be removed and replaced with running. So what does it return? The removed element should contain create a new array with sports and cooking, and hobbies array will be hobbies will be Running. running, right? So you can see sports and cooking is removed element and hobbies is replaced with running. Clear? So -1 माइनस से कोई एक्सप्लेन करने वाला है, क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आर यू क्लियर? जहां पे इंडेक्स होता है एरे की इंडेक्स, वो माइनस से भी चालू हो सकता है। मींस इफ आई पुट इट -1 over, then what? -1 over here, then what happen? राइट से फिर वो एलिमेंट, राइट से हटाएगा। दो एलिमेंट को सो राइट से मतलब कुकिंग, -1 पोजीशन मींस कुकिंग, कुकिंग हटा देगा। कुकिंग हटा देगा। and कुकिंग और स्पोर्ट्स भी हटा देगा सर, और नहीं रनिंग ऐड कर देगा। नहीं, स्पोर्ट्स नहीं हटाएगा। यहाँ Sports नहीं हटाएगा यहाँ से राइट में जाता है, काउंट राइट में जाता है, लेफ्ट में नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ से राइट जाता है, तो राइट में तो और है नहीं, 1 ही है। यस सर। तो ये क्या करेगा कि कुकिंग हटाएगा और रनिंग ऐड कर देगा उसके प्लेस में। कुकिंग ही खाली हटा, दिख रहा है, और स्पोर्ट्स के बाजू में रनिंग, कुकिंग के प्लेस में यहाँ पे रनिंग रिप्लेस हो गया। क्लियर? The first console is the removed Yes, elements, sir. array of removed elements. Yes, sir. Second one is the hobbies, the original element. तो इसमें नोट डाउन कर लो आप क्या क्या होता है स्प्लाइस में। कोई नोट पैड रखा हुआ है तो शॉर्ट नोट कर दो। स्प्लाइस मेथड इज यूज्ड, स्प्लाइस मेथड इज यूज्ड टू, सर 1 मिनट। yes, splice method is used to insert any element in any position of the array. Insert नहीं, remove and insert both करता है, right? So splice will insert and remove any element from any position of the array. Remove भी करता है और insert भी करता है, right? Its parameter is, first parameter is the position from which you want to remove or replace. Second is the count of elements, the count of element that you want to remove from that position. And third and onwards, third and आगे जितना भी element होगा, these are the elements that replace in that position. Clear? First is the from which index, so पहले remove करेगा, then जाके insert करेगा. Clear? Yes or no? Yes. Yes sir. And position always can be minus or negative, but count cannot be negative. ये negative कभी नहीं होगा, remember. ठीक है? तो splice is clear. And another thing, note down करो, splice always return an array, a new brand new array with removed elements. Splice return a brand new array with removed element, but it also alter or change the existing array, alter, change or affect the existing array. Note down किया? यही टर्मिनोलॉजी सब में यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं।
अभी स्लाइस, जैसे स्प्लाइस में क्या हो रहा था, ये कुछ न्यू एरे रिटर्न करता था, राइट? स्प्लाइस में न्यू एरे रिटर्न करता था, स्लाइस में भी न्यू एरे रिटर्न करेगा बट विदाउट इफेक्टिंग ओरिजिनल एरे। लुक, यहाँ पे एक एरे है यहाँ पर, राइट? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर? अभी यहाँ पे क्या होता है, स्लाइस क्या करता है, इट विल डेफिनेटली क्रिएट ए न्यू एरे, ब्रांड न्यू एरे बट विदाउट इफेक्टिंग ओरिजिनल एरे। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं ये देखो आप, स्टोर, जस्ट मेड गॉट ए कॉल, क्लियर? सो यहाँ पे जो पैरामीटर स्लाइस में, स्प्लाइस एंड स्लाइस, ओके, हम स्प्लाइस पढ़ चुके हैं, नाउ इट इज स्लाइस। व्हाट इज स्लाइस? स्लाइस, द फर्स्ट पैरामीटर स्लाइस is the in starting index, second parameter is ending index, right? So ये क्या करता है, ये ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करता है बट कॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे। ये क्या करता है, थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन, फोर्थ, ये यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स, ये इट एक्सेप्ट टू इंडेक्स, one is static index, one is ending index, but it will pick the element starting from 3 and ending from ending at 4 minus 1 position, means एक कम होगा, एंडिंग पोजीशन जो भी दिया होगा उससे एक कम होगा। इसका मतलब क्या है, सपोज ये मैं 2 से स्टार्ट किया या 1 से स्टार्ट किया, सो स्लाइस क्या करता है, अल्टीमेटली इट पिक द एलिमेंट starting this position and ending with this -1 पोजीशन तक, जितना भी एलिमेंट होगा उसको कॉपी करके एक न्यू एरे बनाता है। क्लियर? राइट? तो ये क्या करेगा, ये दोनों इंडेक्स ही है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स। ये क्या करेगा, टेस्ट रिजल्ट का जो एरे है, इट विल पिक द ऑल द एलिमेंट्स, पिक द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पोजीशन, मींस 5.3 लेगा, एंड 4 पोजीशन के अंदर, 4 मतलब 0 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे, बट ये 4th पोजीशन नहीं लेगा, 4 minus 1 पोजीशन तक, यहाँ तक लेगा, मीन्स 5.3 से 10.99 तक ये 3 एलिमेंट को पिक करेगा और नया और एक एरे बना देगा। ठीक है? तो स्लाइस क्या करता है, इट विल टेक some elements from the existing array and create a brand new array. Clear? And how can I identify that which element he is going to pick? It identifies from index, because slice accept two parameter, one is starting index, another is ending index, but it will not take exactly till the all element till the ending index, it should be the ending index -1 position. So ये यहाँ से यहाँ तक लेगा, right? सो ओरिजिनल एरे उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। ये 2 एरे में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप चेक करो, दिख रहा है? पहले में 5.3 से 10.99 जैसे बोला था, और यहाँ पे जैसे जो एलिमेंट था वही है, क्योंकि मैं वहां से खाली पिक किया। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, अभी और एक चीज है, अब 2 एरे, ये मैंने बोला कि ये ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करता है, तो 2 एरे कभी सेम नहीं होंगे। देखो फॉल्स,
क्यों? क्योंकि दोनों ये ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करता है, सेम एरे में कुछ नहीं करता है, या ये एरे को कॉपी नहीं करता, ये एरे से कुछ एलिमेंट लेता है ऑफ कोर्स डेफिनेटली, बट इट क्रिएट ए ब्रांड न्यू एरे। तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। ओके, अब मैं टेस्ट रिजल्ट में कुछ भी पूछ करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये दोनों एरे, ये एरे एंड दिस एरे बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कोड रखा हुआ है, लेट्स सी दिस। If I don't pass any parameter to this, then what it will create? सर सारे एलिमेंट कॉपी कर लेगा। यस, बिल्कुल सारे एलिमेंट कॉपी कर लेगा, बट विथ ए ब्रांड न्यू एरे। देखो ओके ये this statement and this statement, what is the difference between these two? Means it is a shallow copy. What does it mean? It will the store a result, copy the reference of the test result array. Means if you want to change anything inside test result array, then it will reflect our store result, right? But if you want to copy all element using slice, then what happen? The store result will be a brand new array. It is not the reference of the existing test result array, right? Now यहाँ पे मैं कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, look यहाँ पे सपोज मैं कुछ टेस्ट एरर में पुश कर रहा हूँ, then you can see it will not reflect in store result, क्योंकि मैं स्टोर रिजल्ट का कॉपी करके टेस्ट रिजल्ट से कॉपी करके यहाँ पे स्टोर रिजल्ट बनाया, बट एज ए एक्सप्लेन इट इज अ ब्रांड न्यू एरे, सो इट विल नॉट इफेक्ट और affect the test result, the store result array if I want to change something inside test result, right? Look, pehla first one is store result which was copied initially. इसके बाद मैंने क्या किया, ये सेकंड वाला एरे क्या है, इसमें मैंने 5.91 ये 5.91 पुश किया, मींस एट द एंड ऑफ द एरे व्हिच इज नॉट हियर इन स्टोर रिजल्ट एरे, राइट? बिकॉज जब कॉपी किया था तब ये चेंज नहीं किया था, कॉपी करने के बाद चेंज किया तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट हियर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर यस सर। क्योंकि जब ब्रांड न्यू अपने एरे कॉपी करते तो देयर इज अनदर वे व्हिच इज स्प्रेड ऑपरेटर, राइट? But you can also use splice with empty parameters. It will copy all the elements without affecting original array and create a brand new array, right? Okay. अब माइनस इंडेक्सिंग जो मैंने बताया था आपको, अभी यहाँ पे इंडेक्स दोनों के दोनों इंडेक्स ही है, तो वी कैन यूज बोथ एज ए माइनस नेगेटिव, यस और नो? दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या किया, आई वांट टू क्रिएट ए ब्रांड न्यू एरे बाय कॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम -5 टू -2। सो व्हाट डज इट मीन? सो -5 कौन सा है ना, -1, दिस इज if it index is starting from minus, then what happen? It will Right start index. from Right to Right. so it is 10 is -1, it is -2, -3, Minus three, -4, -5. So 5.3 is the -5th position में है, and from 5th position to -2. -2. So -2 means -1 and -2, ये -2 है, बट मैंने बताया था और एक कम होगा, एक Minus पहले one. से लेके -1 को लेगा 10.9। -1 10.99 या यहाँ तक रहेगा या यहाँ तक जाएगा? अरे यार, लुक क्या है, 5.3 से 10.99 तक जाएगा, मीन्स एक कम जाएगा, बताया था मैंने। सो ये -5, -4,
3 एंड -2, बट ये -3 तक ही रुक जाएगा, लास्ट तक नहीं जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे -2 इसको कर देता हूं मैं -2, ध्यान से देखना, यहाँ पे करता हूँ -5, देन आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ? कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी आया। क्यों? क्योंकि हमेशा जो काउंट लेता है ना एलिमेंट, वो पिक करता है फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड, देन इट काउंट, देन सेकंड एलिमेंट शुड बी ऑलवेज राइट साइड। बट मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या दिया? -2, मतलब यहाँ पे दिया, और एंडिंग पोजीशन -5, मीन्स वो लेफ्ट में है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गो टू हियर, ये ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर, ऑलवेज starting index should be always in the left, ending index should be always in the right. Clear? यस सर। यस सर। यस सर। अभी इंडेक्स माइनस जब होता है वो तो पता चल जाता है। सो यहाँ पे -5 रखा मैंने, तो आपको रखना ही पड़ेगा, और ये इससे राइट में होना चाहिए, आइदर -2 और -1 और -4 भी हो सकता है, राइट? तो -4 -5 इज 5.3 is a -5 position, ये -4 position, so it will consider till एक कम तक कंसिडर करेगा, then only this 5.3 will be there. Look, only 5.3 is written. New array will be contain only one, and existing array will be as it is, it will not altered. So slice क्या करता है? Slice create a brand new array, but it will copy the element, either all element or specific element. It will decide by the indexes passing to slice method, right? कोई specific element एक starting index से ending index के बीच में जो भी elements होगा, इसको copy करके it will create a brand new array and without affecting original array. हमेशा जब brand new array बोलता हूं तो उसका reference भी अलग है, right? जैसे ऐसे कॉपी करता हूं तो ये नया एरे तो बनता ही है, बट वो एक्चुअल नया एरे नहीं होता, वो सेम ही एरे होता है, खाली उसका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि सेम रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस कॉपी होता है, ब्रांड न्यू एरे नहीं होता, यहाँ पे ब्रांड न्यू एरे होता है। सो इट इज ऑल्सो एन अनदर वे टू क्रिएट ए ब्रांड न्यू एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे, स्लाइस। सो स्प्लाइस एंड स्लाइस प्रेटी क्लियर? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अभी कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट क्या करता है? कॉन्कैट इज ऑल्सो क्रिएट ए ब्रांड न्यू एरे, बट जॉइनिंग टू एरेज, वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे दो एरे है यहाँ पर, वन इज टेस्ट रिजल्ट, अनदर इज न्यू रिजल्ट। सो इफ यू वांट टू कॉन्कैट, देन टेस्ट रिजल्ट कोई एक के साथ दूसरों को कॉन्कैट करते हैं, राइट? तो टेस्ट रिजल्ट डॉट कॉन्कैट न्यू रिजल्ट, और कोई इसके अंदर जितना भी एरे आपको ऐड करना चाहते हो, इसमें ये कॉन्कैटिनेशन के मेथड के अंदर आप डाल सकते हो, राइट? एंड टेस्ट रिजल्ट, एंड ये क्या करता है? इट विल क्रिएट ए स्टोर रिजल्ट करके नया एरे क्रिएट करता है। एंड इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन द एग्जिस्टिंग एरे, इट विल नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल एरे एज वेल। देखो, फर्स्ट वन इज द न्यू ब्रांड न्यू एरे, दिस वन इज द एग्जिस्टिंग एरे। तो एग्जिस्टिंग एरे जो भी था वही है, खाली 5.9 मैंने पुश किया यहाँ पे, तो 5.9 एंड में 10 के बाद ऐड हो गया, राइट? बट ये दोनों और ये और एक ये तीसरा एरे, ये तीनों को कॉन्कैटिनेट करके एक स्टोर्ड रिजल्ट करके एक न्यू और एक ब्रांड न्यू एरे बनाया, जिसके अंदर तीनों की एलिमेंट्स मिक्स होके दिख रहा है आपको। क्लियर? Store result, concatenation is used to concatenate multiple arrays and create a brand new array. Of course, it will not affect the existing arrays. Clear? कोई डाउट है तो पूछना, बाकी मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। सर एक मिनट आउटपुट दिखाना उसका। जो पहला एरे है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये स्टोर टेस्ट रिजल्ट, न्यू रिजल्ट, एंड ये भी है एक नई न्यू और एक एरे ऐड कर दिया जो इनलाइन एरे बना के,
तो 3 रिजल्ट का, तो 1 5.3 1.5 10.99 5 10, ये 22 45, ये प्लस ये 3, मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 10, ये 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट visible, Yes, sir. starting from 0 going towards 11. और ये एरे है इसमें जो 6 ही था 6 ही है 6 ही है, इसमें 7वां कुछ भी नहीं है, बट जो पुश किया मैंने ये 0 to 6 मतलब 7 लेंथ इज 7 मींस ये जो पुश किया वो और एक उसमें ऐड हुआ, बट पहले से वो 6 ही था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर? Yes, sir. Yes. अभी इंडेक्स ऑफ, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ? इंडेक्स बताता है, हाँ, इंडेक्स रिटर्न करता है सर शायद वैल्यू का, पोजीशन रिटर्न करता है, इंडेक्स और पोजीशन पोजीशन, रिटर्न यस करता है। Position. Okay, it will return a position. What position? It will return the position of specific element of an array, right? इसमें बहुत सारे कुछ है, देखते हैं अपने। Okay, is it visible? So Yes. Yes, sir. there is an array Sir. test result which contains some elements. Then I want to find the position of 1.5. So you can see there are two 1.5 two elements which is 1.5 in both position. One is 2 position, another is 5th position, 5 position 5, right? तो ये इंडेक्स अब क्या करेगा, जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा उसका ही, प्लीज म्यूट योर माइक इफ यू आर नॉट सेइंग समथिंग, यू म्यूट योर माइक, and if it required then you unmute and talk. Okay, so if there is two occurrence of a same element, then it will index of operator will return the initial one. Okay, so index of कैसे हम यूज करते हैं ना, array dot index of and which element you want to find the position, the element you want to find the position you should write in the inside index of, right? So index of 1.5 की मैं position check करना चाहता हूँ, but ये क्या करता है, चेक करते हैं आपने यहाँ पर 2 means 1.5 is here 0 1 and 2, but यहाँ पे भी है 5th पोजीशन में, बट ये क्यों नहीं दिखा है, because index of always return the index of initial is a first occurrence of that element. जब लेफ्ट से सर्चिंग होगा, ये हमेशा लेफ्ट से ही सर्च करता है, तो फर्स्ट ऑकरेंस आया यहाँ पे तो उसी वही रिटर्न कर देगा, आगे वो सर्च नहीं करता है, राइट? अब index of operator is also taking another parameter. So what does it mean? 3 elements, I think it is the number of element from this element. Yes. 5. So ये क्या करता है कि 1.5 3 पोजीशन से लास्ट तक ढूंढेगा, it will search the position of element, which element, the 1.5, which will start searching from position 3 means 0 1 2 3 means यहाँ से 10.5 से 5 to आगे, तो उसके बाद कौन सा मिल रहा है, 1.5 is fifth position, right? So it will return 5th position. So second parameter inside the index of method is the position from which it will start searching. If I put it 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में सर्च करने जाऊंगा तो 6 पोजीशन में कौन सा 10 के बाद तो 1.5 है नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, -1 undefined, -1,
जब वो सर्च में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, उसके पोजीशन नहीं मिल रहा है, देन वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये सब 0 से ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है सब। ये कोई इंडेक्स नहीं दिया मतलब इट विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम बिगनिंग। तो यहाँ पे 1.5 लिखा, सब यहाँ पे 2.5 कर दूंगा तो ऐसा एलिमेंट नहीं है ये एरे में, तो क्या होगा, इट विल रिटर्न -1। ठीक है, तो आपको कंडीशन देना है कोई एरे के अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं। तो आप चेक कैसे करोगे ना, इफ द एरे डॉट इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू -1, देन इट इज नॉट इनसाइड this array. If array dot index of that particular element not equal to -1, then it exists inside this array, right? So is it clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इंडेक्स ऑफ में सेकंड पैरामीटर क्या होता है हमेशा, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सर्चिंग। ये 2.5 को सर्च तो करेगा कौन सी पोजीशन में, बट स्टार्ट करेगा सर्चिंग ये 3 नंबर पोजीशन से, 3 मीन 0 1 2 3, यहाँ से सर्च करेगा। क्लियर? यस। अभी लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो आपको ये सवाल होगा कि भाई ये तो इनिशियली जब पहले मिल जाता है तो उसको फिर सर्च नहीं करता, और आगे पीछे वाला सर्च नहीं करता, बट ये 1.5 को मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करके सर्च करूंगा, देन इट विल रिटर्न द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे 5, राइट? बट सपोज 1.5 इज ऑल्सो हियर, बीच में भी और एक पोजीशन में है, देन ये क्या रिटर्न करेगा, 6। लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑलवेज रिटर्न द लास्ट occurrence of that element in the array। ये लास्ट एलिमेंट कौन से, 6 नंबर पोजीशन में है, मीन 7th पोजीशन में, मीन 0 टू इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2। ये एक 1.5 is situated in the 0 1 2, then 3, then it is 4 position, then 5 and 6 position। So last index of always return the last occurrence of that element in the array, last occurrence or last position of that element in that array। Clear? और मैंने जैसे आपको बताया था, सेकंड पैरामीटर ऑलवेज इंडेक्स ऑफ में सेकंड पैरामीटर इज द पोजीशन फ्रॉम व्हिच इट विल स्टार्ट सर्चिंग टुवर्ड्स राइट, राइट? तो जैसे यहाँ पे दिया था 2.5 को सर्च करना है या 1.5 को सर्च करना है, बट ये थर्ड पोजीशन एंड ऑनवर्ड्स, राइट? बट लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी हम ऐसे पोजीशन दे सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया था पोजीशन अगेन माइनस हो सकता है, ये सुनो, जहां पे भी पोजीशन में वहां पे माइनस रख सकता हूँ या प्लस भी रख सकता हूँ। देखो, तो माइनस रखूंगा तो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ -1 मीन्स इसके यहां से आगे सर्च करेगा। -1 कौन सा पोजीशन, 10 ये तो 10 है, वो -1 पोजीशन में है, तो -1 और आगे सर्च करने जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, सेट। यहाँ से राइट या लेफ्ट कहाँ गया वो एक 1.5 में हेलो हाँ सर, सुचित हियर। सूचित, यस। सर उसने वही किया है, मतलब कि गलत है ना, पोजीशन तो राइट से उसने ली -110 है अभी, और सर्च करने के लिए उसने वापस से स्टार्टिंग से काउंट किया, 6 पोजीशन पे आ रहा है 1.5 लास्ट पोजीशन, लास्ट अकरेंस। नहीं वो तो सही है, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन से लेफ्ट टू राइट सर्च करता है या राइट टू लेफ्ट सर्च करता है? सर अभी लेफ्ट टू राइट करेगा ना, सर्चिंग तो ऐसे ही करेगा। लेफ्ट टू राइट, तो फिर लेफ्ट टू राइट मतलब अभी यहाँ पे राइट टू लेफ्ट किया ना इसने, जैसे अभी सर ये -1 दिया मैंने यहाँ। हाँ, तो 10 से सर्च करना चालू करेगा वो 10 के बाद से। हाँ तो राइट में जाना चाहिए ना। नहीं भाई, इंडेक्सिंग सर वो राइट टू लेफ्ट ही देगा, लेफ्ट टू राइट ही देगा, सॉरी। बाकी वो करेगा वैसे ही जैसे आप बता रहे हैं, सर्च वैसे ही करेगा, ऐसे राइट से लेफ्ट जाएगा सर्च करने के लिए, लेकिन वो इंडेक्सिंग जब देगा आउटपुट पे तो ऐसे ही देगा वो।
वेट सब वो -1 से सर्चिंग चालू करेगा पर वो जाएगा लेफ्ट में। वेट 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 अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे इंडेक्सिंग मैंने -3 दिया, तो ये क्या कर रहा है कि सर्च तो कर रहा है वो, कहाँ से, -3 मतलब -1 -2 -3। अब सर 4 देगा वो यहाँ देखे से आउटपुट पे। नहीं, ये नेगेटिव इंडेक्स देते तो राइट टू लेफ्ट ये सर्च करता है इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स सब, या फोर्थ पोजीशन थर्ड पोजीशन तक आता है। 1 अब इसको प्लस करते तो क्या हो रहा है, 3 4 3 से करते हैं तो कहाँ पे दिखा रहा है, 2 में दिखा रहा है। 1 बट इंडेक्स अप में क्या कर रहा है ये, ये लास्ट इंडेक्स में ये जो इंडेक्स है ना, ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। लुक एट इट, ये दो ही दिखा है उसका पोजीशन, मींस ओनली दिस, इट रिप्लेस दिस वन ओनली, मींस ये 3 से लेफ्ट साइड सर्च करता है, मतलब राइट टू लेफ्ट सर्च करता है, लास्ट इंडेक्स माइट बी, बट इंडेक्स अब लेफ्ट टू राइट करता है, लास्ट इंडेक्स राइट टू लेफ्ट करता है, या वहां तक करता है। ये वाला मैं आपको देख के बताता हूँ, बाकी यहाँ तक क्लियर है, लास्ट इंडेक्स अप क्लियर है। यस सर। तो ये मैं कल ये वाला बताऊंगा, और ये आगे जो ये चीजें हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और आपको सपोज कोई भी डाउट निकलता है, आप ग्रुप में पूछा करो, ठीक है, या पर्सनली डिस्कस करना है प्रीवियसली जो कुछ हुआ है। जैसे मैंने आज जो बताया, कल आपको डिस्कस करना है तो इमीडिएटली आप वहां पे पूछ सकते हो मीटिंग में कल आके सुबह। बट प्रीवियसली कुछ है तो आप वो जो मेंटर्स है, आपका जो 6 मेंटर्स है, उनसे पूछा करो। वो सर नहीं, हाँ, वो नहीं बताते तो फिर मैं बता दूंगा, बट वो सेपरेटली जिसको डाउट है उसको बताऊंगा। सेशन के टाइम में सपोज आधा घंटा उसमें डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। यस, sir they can ask me personally also, I can हाँ, help them. यू कैन आस्क सुचित आल्सो, ही विल आल्सो हेल्प। हेलो सर। यस, सर एक्चुअली मेरे को ना वो जो जावास्क्रिप्ट असेसमेंट ग्रुप में रिमूव कर दिया। मैं सोचा कि हाँ बाद में ऐड करेंगे, तो अभी तक ऐड भी नहीं किया वो। कौन कौन मेरे को ग्रुप, वो जो ये वाला ग्रुप था, जावास्क्रिप्ट असेसमेंट का ग्रुप। मींस मैटरमोस्ट की बात कर रहे हो? हाँ, आपका नाम क्या है? स्नेहा से नहीं मैं सर। आपको तो ऐड नहीं किया हुआ था। असेसमेंट ग्रुप में मैटरमोस्ट में आप इंडियन के एम्प्लॉय हो? इंडियन लीग में तो इंडियन लीग में हूँ, बट जो एक था ना अब जो मेंटर सब ऐड है, वो ग्रुप में मैं नहीं हूँ। बट आपको एज ए मेंटर मैंने कहाँ सिलेक्ट किया था? अच्छा अच्छा। वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कांटेक्ट करना होगा वो लोगों। ओके ओके सर। ओके, मेंटर्स का तो Yes. सेपरेट ग्रुप, जो 6 लोग उनके हाँ ग्रुप हाँ में हाँ। है, उसमें आप नहीं हो। ओके ओके आई ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड Yes, sir. एंड एनी डाउट, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? सुचित यू देयर? Yes sir, I am there. ओके, सो व्हाट्सएप ग्रुप में सपोज कोई मैसेज करता तो भी आप रिप्लाई कर सकते हो, Sure sir. बट आप लोग पूछा करो वहां पे ही, आपके लिए देयर टिल 2 PM और 1 PM दे विल बी अवेलेबल, राइट। बट आज जो बताया, कल आके सपोज उसमें डाउट होगा तो मुझे तुरंत बताना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, लेट्स कंक्लूड, आई हैव अनदर। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।